Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. In the previous lecture, we have done with the projectile motion, introduction to the projectile motion. Now it's time to pursue with the angular projection. Today we have to find a projection is thrown at some angle theta with horizontal and you have to find nature of trajectory, that is equation of path or इसी equation of trajectory भी बोल सकते हैं आप. Next is maximum height, time of flight, horizontal range and what velocity at any instant. So first of all, we are considering a projectile which is thrown at an angle theta with initial velocity u, and this can be resolved into two components, that is ux is equals to u cos theta and uy is equals to u sin theta. मैं क्या कह रही हूँ कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हमने जिसकी वेलोसिटी u थी, उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया. अलोंग एक्स एक्सिस ux इक्वल टू u cos theta and along y axis it be uy is equal to u of sin theta. Now projectile is going into this direction and at any instant there be a point which I am letting, and from this one is the along x-axis it is covering as x distance and along y-axis it is covering as y distance. जैसे कि आप ग्राफ प्लॉट करते हो, so p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, x और y, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ तक इसका जो है डिस्टेंस दैट वुड बी x as shown in the figure. Okay, and this one is the highest point और highest point का x axis के जो डिस्टेंस है that is your maximum height, ये भी फाइंड करेंगे हम. और यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके कहाँ उसने अपने लास्ट जो जर्नी कंप्लीट की वहां तक जो डिस्टेंस है दैट वुड बी r. दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज. और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो आई होप अब फिगर आपको समझ में आ गई होगी. नाउ वी परस्यू विद द फर्स्ट point, that is we have to find equation of trajectory. So हमने let किया that a projectile is at point P किसी time t के बाद and covering x horizontal distance and y vertical distance. ठीक है, उसके बाद along horizontal along x axis, x axis की तरफ आप देख सकते हो, x axis की तरफ जो ux है that would be u cos of theta, ux इक्वल टू u cos of theta. अब along x axis जो है वो acceleration नहीं लग रही है because acceleration is always acting along the y axis, क्योंकि जब वो y distance कवर कर रहा है यानी कि vertical distance जितना भी कवर कर रहा है तब acceleration लगेगी, that is acceleration due to gravity. जब वो ऐसे vertically travel कर रहा है, पर जब वो इस तरफ travel कर रहा है distance, इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, तब उस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा, तब उस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रही है अंडर द फ्री फॉल. ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस जब हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 0. और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम पी पॉइंट पे ले रहे हैं फिलहाल, तो पी पॉइंट पे है कोई भी जो प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया है वो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब पी पॉइंट पे होगा, तो पी पॉइंट पे उसकी कैसी इक्वेशन बनेगी, वो किस पाथ में जाएगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा आगे जाने के लिए, उसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है. ठीक है बेटा. सो नेक्स्ट इज ux इक्वल टू यू cos थीटा. पता लग गया आपको ax एक्सेलरेशन इज 0 अलोंग द x एक्सिस, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है अलोंग x एक्सिस नॉट y एक्सिस. ओके, सो sx डिस्टेंस उसने कवर किया x अलोंग द, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना, तो दैट वुड बी x. यहाँ से यहाँ तक ये रहा x. नेक्स्ट इज टाइम उसने कितना लिया, t. So applying the second equation of motion, this is that is s equal to ut plus half at square. ये सभी x axis के along है, तो मैंने इसको x axis इसके fix में लिखा है, so that it be s of x distance covered along x axis, u velocity horizontal component of the velocity, t plus half of ax horizontal component of acceleration into t square. सो ux कितना है, u cos of theta, t प्लस एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 0, पुट ऑन करके हमारी यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज t इज इक्वल टू x बाय u cos of theta. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, एज यू नो दैट दिस इज गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, पर जा ये ऊपर की तरफ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी.
ओके, क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया है P, उस पॉइंट पे वो ऊपर की तरफ जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो ऊपर की तरफ जा रहा है बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. दैट इज व्हाई हियर आई एम टेकिंग दैट ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g. ओके, एंड uy इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हमने पहले ही रिजॉल्व कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ साइन थीटा. ओके, आई होप कोई क्वेरी ना रही हो यहाँ पे. दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड एस वाई इज इक्वल टू वाई, है ना, क्योंकि पी पॉइंट लिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई. यहाँ पे कितना लिया था हमने, एस एक्स इक्वल टू एक्स, और एस वाई कितना लिया है यहाँ पे टी, टी टाइम टी के इक्वली लिया है, सिंपल. ओके, again applying second equation of motion s equal to ut plus half at square, y axis के along रह रहे तो इसके suffix में मैंने y axis ले लिया. so y is equal s y किसके बराबर है, y के, u y किसके बराबर है, u sin of theta into t minus half a t square. अब इस t की वैल्यू, क्योंकि टाइम तो सेम लगेगा, ओके, टाइम तो सेम लगेगा ना, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है. सो इस टाइम की वैल्यू को मैंने इस सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लिया. सो पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 into 2 एंड यू गॉट y इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा था, t की वैल्यू पुट कर दी x डिवाइड बाई u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर. अब स्क्वायर कर दिया, इसका सॉल्व कर दिया, यू के साथ यू कैंसिल, क्या बचा x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अब इसमें सभी चीजें जो हैं, अगर मैं कांस्टेंट लूं तो मैं हाईएस्ट पावर अगर x की लेती हूँ, ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर मैं x की लेती हूँ, तो एक तरह से ये आ जाएगा दैट y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. और ये इक्वेशन पैराबोला की होती है, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सॉरी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ये सब इक्वेशंस पैराबोला की होती हैं. तो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पैराबोला. ये मैथमेटिक्स में होगा, आपको अभी आएगा. सो नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे क्या होगी, पैराबोला, बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पैराबोला. ये मैंने इसकी हाईएस्ट पावर के प्रोपोर्शनल लिखा है, प्लीज ये मत सोचना कि ये मैम ने ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया. okay, so keeping all the terms are constant, theta constant, cos of theta, gravity भी constant है, x यहाँ पे 2 बार आ रहा है, पर मैंने सिर्फ हायर टर्म ली है उसकी, कि हायर टर्म के उसको प्रोपोर्शनल करके y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, पाथ चाहिए था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ही चीज के करना था मुझे, बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के. सो दैट इज वाई, सो दैट आई कैन फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला. Now is the time to calculate maximum height. So maximum vertical height attained by object above the point of projection during flight. ठीक है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इस इक्वेशन में, इस डायग्राम में. ये देखिए, ये उसकी मैक्सिमम हाइट, के इससे ऊपर नहीं जा सकता वो, है ना. इसके बाद उसने नीचे आना शुरू कर दिया. सो ये मैक्सिमम हाइट हमें डिटरमिन करनी है. सो अलोंग वर्टिकल, सिंपल, हम हर केस में दो चीजें लेंगे, अलोंग वर्टिकल, अलोंग हॉरिजॉन्टल, दोनों में इक्वेशन सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व की थी हमने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे. पहले हम ले लेते हैं अलोंग वर्टिकल, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी वी वाई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, जब वो धरती पे गिरेगा तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, सो इट बी 0. और मैक्सिमम, और जब वो वर्टिकल हाइट भी अटेन कर रहा है ना बेटे, जब वर्टिकल हाइट अटेन कर रहा है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 ना हुई, तो वो ऊपर ही जाता जाएगा. समझ रहे हो आप, वो ऐसे करके इस तरह से गिरा ना, तो वो ऐसे करके ऊपर ही चला जा रहा था. जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती, वो नीचे नहीं आएगी. इस केस में अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी में 0 ना ले ना, इसका मतलब ये और ऊपर तक जाएगा. बट अगर यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, पावर खत्म फाइनल वेलोसिटी वाली, तो ये सीधा नीचे आ रहा है. ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, उसको इसलिए हमने क्या लिया है, 0. और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ऑब्वियसली हमें, तो मैंने h लिया है यहाँ पे.
y एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया मैंने, ये v y एक्सिस के अलॉन्ग है तो v y u y स्क्वायर टू a y s y, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है, सिंपल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब v y 0 है, u y कितना है, u साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू माइनस 2gh, क्योंकि ऐसा रिलेशन माइनस जी के बराबर है, एस ऑफ वाई किसके बराबर है, एच के बराबर। तो यहाँ से आपका एच आ जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। सो दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हमें। इट इज अ टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन द फ्लाइट रिमेन्स इन द एयर व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी तक, ए से लेके बी तक आने के लिए, ये पॉइंट को उसने ए माना है पर्टिकुलरली, इस पॉइंट को बी माना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इसकी पूरी जर्नी के लिए उसको कितना टाइम लगा हवा में, कितनी देर टहलता रहा, सो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन द फ्लाइट। ओके, सो रिमेन्स इन द एयर व्हाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि पहले वो ऊपर जाएगा, फिर मैक्सिमम पॉइंट आएगा, फिर नीचे आएगा। सो दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट मीन्स दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट जब वो अपवर्ड जा रहा है, दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट जब वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, यहाँ पर भी टाइम टी लगा, यहाँ पर भी टाइम टी लगा। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, total time capital T is equals to small t plus small t, that is 2 of double of small t. So along vertically again uy is equal to u sin of theta, ay is equal to minus g, क्योंकि वो upward direction में जा रहा है, time of ascent निकाल रहे हैं हम। So vy एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, ओके क्योंकि उसी को ही हाफ मान रहे हैं हम। So t is equals to t. By using the first equation of motion, vy is equals to 0, uy is equals to u sin of theta, ay कितना आ गया माइनस जी इंटू टी, तो यहाँ से t आ जाएगा u sin थीटा बाय t। अब पर टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या था, डबल ऑफ t, सो डबल ऑफ u sin थीटा बाय t, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा आपका। Next है horizontal range. It is a horizontal distance covered by the object between its point of projection and point of hitting the ground. यानी कि अब horizontal range क्या आ जाएगी, this one, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उसने x axis के along travel किया, this is known as a horizontal distance, that is अभी हमें r निकालना है। Okay, क्या निकालना हमें, r. So let's see how we calculate it. Along horizontal ax is equal to, यहाँ पे ux है, a नहीं है, ओके, सो ux इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, ax इज 0 क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस भी 0 क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं उसको एक्सेलरेट कर पा रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। सो x और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, r, विच इज नोन एज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और यही हमें कैलकुलेट करनी है। और टाइम कितना था, टाइम पूरा फ्लाइट का अब हम यहाँ पे सीधा ही लेंगे, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि हम अब पूरी रेंज निकाल रहे हैं और पूरी रेंज के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। मेक श्योर सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज में ही आपको ये टी इस तरह से यूज करना है और किसी भी पार्ट में सॉल्व करने के लिए इस तरह से यूज नहीं करना है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने हैं जो कि होल जर्नी के बाद उसने हॉरिजॉन्टल कितना कवर किया, दैट इज वाई यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले रही हूँ मैं। सो अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसके पैर में एक्स लिखा हुआ है, सो एस ऑफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने, r इज इक्वल्स टू u ऑफ x कितना है, u cos थीटा इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक्स कितना है 0। तो यहाँ पे t की वैल्यू सिंपल पुट की गई है 2u sin थीटा बाई जी, और इसको सॉल्व किया गया है u स्क्वायर साइन 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है साइन ऑफ 2 थीटा के, तो रेंज कितनी आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ किया है, वही डायग्राम है बेसिकली, बट यहाँ पे कंपोनेंट्स दोबारा से ड्रॉ करने पड़ते तो इसीलिए दोबारा से ड्रॉ किया गया है, क्योंकि वो फिर हौच पौच हो जाता
पुराने वाले डायग्राम में। सो दैट इज u वेक्टर, उसी की ही कंपोनेंट्स, थीटा एंगल पे गिराया, कोई भी p पॉइंट लिया जिस पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है, सो दैट बी द हाईएस्ट पॉइंट इवन टेकन। सो v वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ब्रेक किए vx vy और लेट कर लिया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है दैट इज pst। सो v बी द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। सो v इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, vx प्लस vy के, और वेक्टर किसके बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड तो vx है, डायरेक्शन किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, दैट इज i वेक्टर। vy है, vy का वेक्टर और टू डायरेक्शन किसके अलोंग है, z, y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, i j कैप। ओके, सो दिस वन इज जे कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर साथ में लगा दिया मतलब इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी, तो ये होल एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरो। ओके, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। नेक्स्ट इज हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है एज वी डन इन द प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें ये क्लियरली दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम क्यों रहती है। सो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा, वी एक्स इक्वल टू नेक्स्ट इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल में हम देख लेते हैं यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा और ए वाई माइनस ऑफ जी, तो हमें वी वाई कैलकुलेट करना है। देखिए अब यहाँ पे जो यू एक्स था, पहले ये यू एक्स इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा था, पर यहाँ पे अब ये वी एक्स भी यू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स जो यू ऑफ एक्स था दैट वुड बी इक्वल टू वी ऑफ एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा। पर वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता, ग्रेविटी इफेक्ट डालती है वेलोसिटी कंपोनेंट पे, दैट इज व्हाई यू y is equals to u sin of theta, ay is equals to minus g, vy हमें कैलकुलेट करना है, t is the time, so अप्लाई करनी है हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज vy is equals to uy plus ay of t। अब uy कितना है, u sin of theta minus g into t। अब यहाँ पे मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, क्योंकि अगर मुझे कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगाना पड़ेगा, दैट इज रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2 vx vy cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, सो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो vx कितना है u cos ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस vy मैंने यहाँ से निकाली है u sin थीटा माइनस gt। ओके, क्योंकि वी वाई तो चेंज होगी ना, ग्रेविटी इफेक्ट करेगी वी वाई को, बट जो वी एक्स है उसको वो इफेक्ट नहीं करेगी, तो सिंपली यू एक्स दैट इज इक्वल टू वी एक्स, सो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, जो मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाला, इन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की है बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो यहाँ पे पुट करने के बाद मैंने इसका स्क्वायर खोला है, पर्टिकुलरली यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी की होल स्क्वायर बन रही है ना यहाँ पे, ए माइनस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ओके, अब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगी तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इन दोनों का, दैट वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि इसके ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट यू रेड इन क्लास 9th और 10th इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो नेक्स्ट इज प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ये सारा ऐसे कैसे ही आ गया। सो दिस वन इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब अगर डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें वही छोटी सी ट्रायंगल ली है PST ट्रायंगल, ठीक है। अब डायरेक्शन कौन देगा, इसकी स्लोप देगी, डायरेक्शन वुड बी गिवन बाय इट्स स्लोप। अगर यहाँ पे भी थीटा एंगल बन रहा है सपोज, तो डायरेक्शन कैसे देगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज TS डिवाइड बाय PS। ओके, तो ये आ जाएगा TS और ST डिवाइड बाय PS। TS भी लिख सकते हैं इसको आप सिंपल, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू TS डिवाइड बाय PS। और यस, यहाँ पे थीटा की जगह बीटा इसीलिए लिखा गया है ताकि इन दोनों एंगल्स में डिफरेंस कर सके हम, क्योंकि ये तो इनिशियल का हो गया थीटा
बट जो हम निकाल रहे हैं वो किसी भी इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है कि इसका एंगल थीटा नहीं बदल के बीटा हो गया हो। सो इसीलिए यहाँ पे एंगल डिफरेंट लिया गया है, सेम नहीं लिया गया, वैसे भी सेम नहीं रहता, डिफरेंट ही रहेगा along the projection. So tan of beta is equal to st डिवाइड बाय ps। अब st किसके बराबर है vy के, और ps किसके बराबर है vx के। st किसके बराबर है, देखिए ये यहाँ से ये इसके इक्वल है ना vy के, और ps सिंपल vx के बराबर है, ठीक है ठीक। सो vy बाय vx, अब vy किसके बराबर था हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था, दैट इज u sin थीटा माइनस gt, और vx किसके बराबर था, u cos ऑफ थीटा, vx है ये, ओके। ux की भी इतनी ही वैल्यू है, vx की भी इतनी वैल्यू, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ओके। So that would be u sin of theta minus gt divided by u cos of theta. Beta is equal to tan inverse u sin theta minus gt divided by u cos of theta. That's it. ये इसके डायरेक्शन आ गए वेलोसिटी कंपोनेंट की। Thank you so much.